السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ٹرپل آئی ٹی کے عملے کی برخاستگی کے خلاف ریاست کے کئی مقامات پر طلبہ کے احتجاجی مظاہرے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نمس سے ڈسچارج، مسئلہ تلنگانہ پر کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کرنے کی خواہش، سونیا گاندھی کو مکتوب۔ صدر پی سی سی بوتسا ستیہ نارائنا دہلی روانہ، پی سی سی کی تنظیم جدید اور ڈی سی سی صدور کے انتخاب پر سونیا گاندھی سے کریں گے ملاقات۔ آمدنی سے زائد اثاثہ جات پر رنگا ریڈی کے او ایس ڈی کے مکان پر اے سی بی کے دھاوے۔ ٹی آر ایس پولٹ بیورو کا آج اہم اجلاس، تلنگانہ تحریک کی حکمت عملی کے بشمول دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال متوقع۔ چندر بابو نائیڈو کی آج سے نلگنڈا میں ریتو یاترا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں گاڑیوں کی پولیس کی جانب سے تلاشی، اور ریاست میں موسم سرما کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے چریال میں رچا بنڈا پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت کے پروگراموں اور مختلف اسکیمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ رچا بنڈا کے دوران راشن کارڈز کی درخواستیں وصول کرتے ہوئے نئے راشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ ఎలక్షన్ వరకు 2009 ఎలక్షన్ వరకు 6 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కేవలం 6 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. 8 ఎమ్మెల్యేలు పెరిగారు. అంటే ఇప్పుడు 14 ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో మీ 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 11,80,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 11,00,000 బాగినాలు మీరు 11,80,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి రంగారెడ్డి జిల్లాలో. మొన్నటి వరకు రచ్చబండ మొదలు راجمندری میں خراب موسم کے باعث کنگ فشر ایئر لائنز کے طیارے نے ہوا میں کچھ چکر کاٹنے کے بعد بحفاظت لینڈنگ کی۔ اس طیارے میں پرانا لکشمیا، پی ستیہ نارائنا، ارون کمار کے بشمول 60 مسافرین سوار تھے۔ موسم کے ٹھیک ہونے کے بعد طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی، جس پر طیارے نے محفوظ انداز میں لینڈنگ کی۔ ریاستی وزیر ڈی ناگندر نے کہا ہے کہ ریاستوں کی تنظیم جدید سے متعلق دوسرے کمیشن کے قیام کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور یہ تمام خبریں میڈیا کی اختراع ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ پر مکمل مشاورت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا اور تاحال دوسرے ایس آر سی کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ برلا مندر، گولکنڈا، چار مینار، حسین ساگر اور شہر کے دوسرے سیاحتی مقامات کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے عوامی مشاہدے کی محکمہ سیاحت کو ڈی جی سی اے سے ہنوز اجازت نہیں ملی ہے۔ اس اجازت کے بعد عوام ان سیاحتی مقامات کا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مشاہدہ کر سکیں گے۔ دکن ایوی ایشن کی جانب سے اس مقصد کے لیے بیل 47 ہیلی کاپٹر حاصل کیا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے عہدیداروں نے اندرون چند دن اجازت ملنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ ٹرپل آئی ٹی کے عملے کو ملازمتوں سے برخاست کر دینے پر ریاست کے کئی مقامات میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی اس کارروائی کے خلاف برہم، ایڈولاپایا، نزوال اور باسر کے آئی ٹی طلبہ نے یہ احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ سابق ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کو نمس سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔
दवाखाने से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए कल मुनक़िद होने वाले पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में मसला तेलंगाना पर फैसला करने की ख्वाहिश की है। सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा दिल्ली रवाना हो गए हैं। तवक्को है कि वो आज सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से डीसीसी सुदूर के इंतखाब और पीसीसी की तंजीम जदीद के मसले पर बातचीत करेंगे। वो इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद, प्रणब मुखर्जी और दीगर कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। समझा जाता है कि वो डीसीसी की तंजीम जदीद के मसले पर गुलाम नबी आज़ाद से बातचीत करेंगे, जिसके बाद पीसीसी की भी तंजीम जदीद अमल में आएगी। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने आमदनी से जायद अससाजात रखने पर रंगारेड्डी के ओएसडी सर्वेश्वर रेड्डी के जिला रंगारेड्डी के वाक़े मकान पर धावे किए। एसीबी के अहदेदारों ने 5 मकामात पर उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि सर्वेश्वर रेड्डी ने क़ब्ल सईदाबाद के इंस्पेक्टर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। इस धावे के दौरान 5 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अससाजात का भी पता चला है। टीआरएस पोलिट ब्यूरो का अहम इजलास आज मुनक़िद होगा, जिसमें तेलंगाना तहरीक की हिकमत अमली के बशमूल दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में पोलिट ब्यूरो अरकान शिरकत करेंगे। पार्टी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा कि इस इजलास में किसानों के मसाइल, तलबा की स्कॉलरशिप्स के अलावा तेलंगाना तहरीक की हिकमत अमली पर भी बातचीत की जाएगी। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की रैतु यात्रा का आज से जिला नलगुंडा में आगाज अमल में आ रहा है। तेलंगाना की हामी टीआरएस ने उनकी इस यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की रुकावटें पैदा न करने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि जिला नलगुंडा में तेलुगु देशम कायदीन में ही ग्रुप बंदियां उभर कर सामने आ गई हैं। चंद्रबाबू नायडू को इन ग्रुप बंदियों का सामना है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल रात पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई। टास्क फोर्स के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स ने भी गाड़ियों की तलाशी ली। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के वाक़यात पेश आए थे। रियासत में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। रात की अवलीन सातों से मौसम की तब्दीली के साथ ही सर्द हवाएं भी चल रही हैं। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी का असर देखा जा रहा है, जिसके बायस शहरी गर्म लिहाफों में देखे जा रहे हैं। बाज़ अफराद सुबह के औकात में चहलकदमी और वर्जिश के जरिए सर्दी का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि शहर के दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। कई मकामात पर सर्दी के लहर में इजाफे की भी इतलात हैं। कांग्रेस ने यह वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना मसला दूसरे एसआरसी के दायरे कार के तहत नहीं आएगा। कांग्रेस तर्जुमान राशिद अलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी बाज रियासतों के मसले को एसआरसी के जरिए हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरा एसआरसी उत्तर प्रदेश के बाज इलाकों के लिए ही होगा। दूसरे एसआरसी से मुताल्लिक बाज मीडिया घरानों की तशहीर की टीआरएस ने सख्त मजम्मत की है। फ्लोर लीडर टीआरएस ईटाला राजेंद्र ने इंतबाह देते हुए कहा कि 9 दिसंबर के बयान पर तहरीक में शिद्दत पैदा करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विनोद ने कहा कि दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी ने उत्तर प्रदेश के सियासी हालात के पेश नज़र एसआरसी से मुताल्लिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से नहीं है।
तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जिला खम्मम में रैतु यात्रा पर अवाम का कोई खास रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू की इस यात्रा के खिलाफ तेलंगाना के हामियों ने एहतजाज किया और उनके पुतले नजरियातिश किए। तूपल्ली मंडल में यात्रा के दौरान बशीरबाग वाक़े के महलूक रामकृष्णा के अरकान खानदान ने इसकी मुखालिफत की। साबिक चीफ मिनिस्टर एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की रैतु यात्रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम को चंद्रबाबू नायडू पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने 9 साला दौर इख्तिदार में किसानों को नजरअंदाज कर दिया। उनके दौरे हुकूमत में कई किसानों ने खुदकशी की और अब इख्तिदार से महरूमी के बाद चंद्रबाबू नायडू को किसानों से हमदर्दी हो गई है। मालदीव के अद्दू शहर में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अपने पाकिस्तानी हम मनसब यूसुफ रजा गिलानी से दोपहर में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों सरबराह बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर बातचीत करेंगे। दोनों सरबराहों के दरमियान ये मुलाकात 8 माह के बाद हो रही है, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के तमाम उमूर ज़ेर बहस आने का इम्कान है। इन उमूर में सरहद पार दहशतगर्दी का मसला, मुंबई दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ जारी मुकदमे की पेशरफ्त और हिंदुस्तान को पसंदीदा मुल्क का दर्जा देने जैसे उमूर शामिल हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल दोनों सरबराहों के दरमियान मोहाली में आलमी क्रिकेट कप के दौरान मुलाकात हुई थी। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम सार्क के सरबराहों का इजलास आज से मालदीव के शहर उद्दू में शुरू हो रहा है। इस इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह मालदीव पहुंच चुके हैं। वजीर आजम का इस्तकबाल मालदीव के सदर मोहम्मद नशीद ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में तिजारत को पाबंदियों से आज़ाद करने से मुताल्लिक़ माहिदा होने की उम्मीद है। मशरक़ी तुर्की में एक मरतबा फिर 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। इस ज़लज़ले के बायस 3 अफराद हलाक हो गए और कई अफराद मलबे में दब गए हैं। तुर्की के मशरक़ी शहर वान में ज़लज़ले के ताज़ा झटकों से एक 6 मंजिला होटल के बशमूल 20 इमारतें मुनहदम हो गई हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ वान शहर के जुनूब में 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ था। तकरीबन 3 हफ्ता पहले वान शहर के शुमाली मशरक़ी इलाके में 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले में 600 अफराद हलाक हो गए थे। 23 अक्टूबर को इस ज़लज़ले के बाद कई ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क भर में कई तकारीब का अहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा पाटिल, नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी और वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।